Today we are going to do the very crucial part of definite integrals. See, in my last video, we have done the basic concepts of definite integration. We have done the problems using substitutions. Now, it's a very important part of definite integrals. Today I'll discuss the properties and the problems based on the properties. So please try to understand the properties and also do the proof of the properties, because that is also very crucial. Many times what happens, do you know, in exams the examiner asks the property and the problem based on that property. So please do the proof of the properties and along with that the questions also. Okay, so let's start the properties, because the problems will become very easy and very short by using these properties. We have to use these properties. These are very important, and definitely there will be a problem, a question related to these properties in CBSE, or if you go for IIT JEE, any exam you give, if integration is there, so means the properties are there. If properties are there, definite is there. If definite is there, then you have to use the properties. So let's come and understand. First property says that a to b fx dx is equal to b to a to b fy dy. It means it does not matter whether you write any of the variables. Like see, if I write 1 to 2 x square dy, this will become x cube upon 3 1 to 2, and this is 2 cube upon 3 minus 1 cube upon 3. This is the answer. And if I write 1 to 2 y square dy, still the answer is y cube upon 3 and 1 to 2. This is 2 cube upon 3 minus 1 cube upon 3. So the answer is same in both the cases. This is called a property number 1. Let us go for property 2. Let us understand property 2. I think this is very clear to you. So let us go for property number 2. Let us try to understand. This is what a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. देखो जब लिमिट इंटरचेंज होंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. वाई दिस इज देयर, आई विल टेल यू. लेट अस राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. ऑल राइट, देन a to b fx dx will become what? This is fx and a to b. This is fb minus fa, upper limit minus lower limit. This is minus fa minus fb. Then reversely, what can I write this? I can easily write it minus a b to a हो जाएगा, ये लिमिट रिवर्स हो जाती है fx dx. This way I can solve. This is again, see, these kind of proofs are also very important. The reason behind this is क्योंकि 2 मार्कर या 3 मार्कर में 3 मार्कर्स में भी one property and along with that a problem may be there. So please, you will do all these properties, you will see the proof and you will do these proofs also. I will switch over to property number 3. This is what property? This property says that a to b fx dx is equal to, we can break the limit provided what? This is one very important thing is there, provided this c should be greater than a and lesser than b. This is crucial here. ये जो c है इसको इसी के बीच में आना चाहिए. You will see many problems you will be able to solve very easily using this property. How do I solve? Just now I said, let us write, if I write integration of fx dx is equal to fx. So here I will write its LHS is what? LHS I can write a to b fx dx. This is equal to fx है ये, अभी हमने लिखा था a to b. This will give me
FB minus FA. Then I can go for RHS. This is about LHS. If I go for RHS, see दोनों इंटीग्रेशंस को लिख लो. पहला इंटीग्रेशन fx, ये हो जाएगा a to c प्लस अगेन फंक्शन इज सेम, दिस इज c to b. Now this will become fc minus fa, a to c, fc minus fa, and plus this will become fb minus fc. Then fc cancels. बचेगा क्या आपके पास? fb minus fa बचेगा. fb minus fa. fb minus fa is what? This is LHS of this function. दोनों सेम हो जाएंगे. Let us go for fourth property. Please note down this. You can make a note of this. Please pause this video and then make a note of this. Let's do the fourth property. Very important property. See, look here. A to b fx dx is equal to a to b fa plus b minus x dx. See how I am going to prove this. I will go from RHS. Let me write a plus b minus x is equal to t. This will give me minus dx is equal to dt and dx is equal to minus dt. All right. पहला बात. दूसरा, when x is equal to a, yeah, x is equal to a, t is equal to b, x is equal to b, t is equal to a. ये हो गई मेरी लिमिट ट्रांसफर. अब आई विल कम टू द इंटीग्रेशन. मैं RHS से आ रही हूँ. मैंने बोला दिस इज x इज इक्वल टू a, ये b है, b और ये a है, और ये बन गया ft और ये बन गया माइनस dt. बस दिस इज ऑल राइट. अब क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये माइनस है, b टू a ft dt. आई विल राइट b टू a ft dt. इसको मैं लिखूंगी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, a टू b ft dt. ऑल राइट. एंड a टू b ft dt इज a टू b fx dx. फर्स्ट ये P1 था, प्रॉपर्टी नंबर 1 था. यहां पर P2 यूज किया था मैंने. ओके. लेट्स कम फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी. ऑल राइट. दिस इज 0 to a. अब आप प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है? हाउ यू विल अंडरस्टैंड? यू विल सी द लिमिट्स. आप ये लिमिट देखोगे और उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी यूज करोगे. आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. देखो मैं इसे प्रूव कर रही हूँ. आप क्या लिखते हैं? लेट a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज इक्वल टू t. दिस विल गिव मी माइनस dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt. नाउ चेंज द लिमिट. व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज t? x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू a. लिमिट यहां से चेंज करते हैं. x इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू 0. ऑल राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. RHS से शुरू करते हैं. a माइनस एक्स इज इक्वल टू, आई सेड लेटेस्ट राइट a माइनस एक्स इज इक्वल टू t. दिस विल गिव मी माइनस dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt. नाउ चेंज द लिमिट. x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू a. इसमें रखना है. x इज इक्वल टू a, इसमें रिप्लेस करो. रिप्लेस इट हेयर. x इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू 0. यहां पर रिप्लेस करना है, याद रखना. नाउ वॉट दिस विल बिकम. अब ये जो RHS है ये बन क्या जाएगा मेरा? देखो x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू 0. राइट. एंड फिर ft और साथ में dx के प्लेस पे माइनस dt. अब इसे लिखोगे माइनस, देखो a टू 0 ft dt. प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करोगे तो दिस विल बिकम 0 टू a ft dt. कहां से आया? लिमिट इंटरचेंज कर दी. P2 प्रॉपर्टी नंबर 2 में था ऐसा. देन प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करो, क्योंकि ft dt, देखो ft dt इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx. सो दिस वन विल बिकम 0 टू a fx dx. दिस इज द आंसर.
ओके, सी दिस प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो -a to a, लिमिट को देख करके ही आप प्रॉपर्टी लगाएंगे और आपको लिमिट को देखकर भी अगर आप लिमिट को अंडरस्टैंड करते हैं तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी एंड टू यूज इट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लिमिट -a to a fx dx है, तो इस फंक्शन को ऐसे ही लर्न करें और फॉर्मूला भी जहां पर आप यूज करेंगे तो इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. नाउ इसके लिए मैंने क्या किया है, देखो ये पहले तो समझा दूं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है. इवन फंक्शन होता है, देखो इवन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, f ऑफ -x. f ऑफ, अगर इवन फंक्शन f ऑफ -x इज इक्वल टू fx एंड ऑड फंक्शन f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx. आपने देखा होगा, देखो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ दिस. इफ आई राइट fx इज इक्वल टू x स्क्वेयर, तो कितना हो जाएगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वेयर एंड व्हाट इज x स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू fx. देखो f ऑफ -x इज इक्वल टू कितना आ गया, fx आया. और अगर मैं लिखूँ fx इज इक्वल टू x क्यूब, तो देन f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का होल क्यूब, this will give me -x cube, this will give me -fx. This is odd function. So this is about odd function and even function. आप x के प्लेस पे -x लिखोगे, अगर फिर से fx आ गया, ये जो तो ये fx आ गया, then this is even function. और ये अगर -fx आ गया तो ये है odd function. 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, फिर से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ सी हाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस. इस लिमिट को प्रूफ करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, -a to a fx dx -a to 0, क्योंकि 0 इज व्हाट, -a से बड़ा होता है 0 और +a से छोटा होता है. यही था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3. क्या था प्रॉपर्टी 3? डू यू रिमेंबर? देखो आई एम राइटिंग ओवर हेयर, a to b fx dx इज इक्वल टू था a to c fx dx प्लस c to b fx dx. मतलब लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं, हम लिमिट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो लिमिट है ये क्या होना चाहिए, ये नंबर ये इन दोनों के a और b के बीच का होना चाहिए, किसे, c को, तभी हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी पहले हम कर चुके हैं. नाउ ये वाला पार्ट तो देखो 0 to a fx dx, ये तो ठीक ही दिख रहा है, इसको तो छोड़ देते हैं I2 को. लेट अस टेक दिस I1 को मैं प्रूफ कर रही हूँ. देखो I1 यहाँ पर मैं प्रूफ करूंगी I1 को. I1 आई एम गोइंग टू टेक व्हाट इज दिस, -a to 0 fx dx. इसे प्रूफ, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन बनाएंगे. अब देखो ये कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे -x हम लेते हैं, लेट x को -x से रिप्लेस किया है. यहाँ पर क्या किया है, रिप्लेस किया है. रीजन, ताकि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की डेफिनेशन को हम यूज कर सकें. तो दिस विल गिव मी dx इज इक्वल टू -dx. कोई परेशानी नहीं है. जब x इज इक्वल टू -a होगा तो -x इज इक्वल टू a हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 होगा तो -x भी कितना होगा, 0 हो जाएगा. ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू -a, -x इज इक्वल टू a, क्योंकि अब हम -x में चल रहे हैं, फंक्शन हमारा -x में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 0, ये बन जाएगा f ऑफ -x और -dx. देन -0 to a f ऑफ -x dx. अब लगा लो इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा, अभी तो ये a to 0 ही है, अब बनेगा ये 0 to a f -x dx. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये क्या बन गया, 0 to a f -x dx. ये है I1 के प्लेस पे नाउ आई विल राइट फ्रॉम हेयर 0 to a f -x dx प्लस 0 to a f x dx. अब क्या लिखेंगे, विन पहला केस fx इज इवन फंक्शन
तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, एफ एक्स हो गया, ठीक है, एफ एक्स हो गया। तो ये कितना हो गया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, देन हाउ मच, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। नो डाउट, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस, ऑड फंक्शन, जब एफ एक्स ऑड होगा तब क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारा, अब की बार ये इंटीग्रेशन माइनस 0 to a माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो गया। ऑल राइट, नाउ इट विल कैंसिल आउट, 0 to a है ये, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0। दिस इज अबाउट दिस प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू कैन राइट दिस। आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नाउ आई विल राइट 7th प्रॉपर्टी। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, आप खुद प्रूव करोगे, क्योंकि ये 7th भी ऐसे ही होती है जैसे ये 6 मैंने पूरी कर दी। सारी प्रॉपर्टी आई हैव डन। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। इसको लिख लो। आई विल गो फॉर विच वन, मैं सिर्फ 7th प्रॉपर्टी लिख रही हूं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आप इसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज प्रॉपर्टी 7? सी लुक हियर, P7 क्या है, P7 है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखो लिमिट हाफ हो जाती है इसमें, ये 2a है, ट्वाइस हो गया, इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाता है, लिमिट हाफ हो जाती है। व्हेन, कब, जबकि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही ये काम आती है। एंड दिस विल बिकम 0, कब, जबकि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। सो जैसे पहले वाला प्रॉपर्टी प्रूफ किया था 6 वाला, सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। आई विल गो फॉर प्रॉब्लम्स नाउ। So look at these problems. I am doing exercise number 7.11. First question I am writing, children, see 0 to pi half, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये cos square x dx। अब इस क्वेश्चन को आपने पहले भी किया था, सबसे पहले जब भी डेफिनिट इंटीग्रल से स्टार्ट किया था तब भी आपने किया था। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी। अब हम इसके लिए करते क्या है, व्हाट वी डू, ये प्रॉब्लम है, इसमें आई विल राइट दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू दिस। अब मैं फिर से लिखती हूँ आई इज इक्वल टू, बट आई विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 5। कौन सी थी, P5? डू यू रिमेंबर, बहुत ज्यादा यूज होगी। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करूंगी। सी लुक हियर, आई विल राइट कॉस स्क्वायर पाई हाफ माइनस एक्स डी एक्स। ऑल राइट, कॉस स्क्वायर पाई हाफ माइनस एक्स डी एक्स कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑल राइट, नाउ दीज टू, इन दोनों को ऐड कर दो, यहां से LHS भी ऐड कर दो और RHS भी ऐड कर दो। LHS ऐड करोगे तो ये हो गया 2i, और ये 0 to पाई हाफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई हाफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑल राइट, ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है इससे। 0 to पाई हाफ, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आई विल राइट साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। 0 to पाई हाफ यहाँ पर आ गया 1। 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है कितना होता है, x। 0 to पाई हाफ, देन अपर लिमिट पाई हाफ माइनस 0 एंड i इज इक्वल टू, ये 2i है। अब आप लिखोगे i इज इक्वल टू, व्हाट इज योर आंसर, i इज इक्वल टू लिखो इसमें, i इज इक्वल टू आप लिखोगे दिस इज 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड i इज इक्वल टू आप लिखोगे पाई बाई 4। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। फाइन, आई विल डू अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4।
Again, see, look here, 0 to pi half cos raised to the power 5x upon sin raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x. This is the problem. Second and third you will do on your own. Again, what I will write, फिर से हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं I. इसे आप लिख दोगे I is equal to, again write I is equal to and use fourth property 0 to pi half. This will become cos है ये, cos raised to the power 5 pi half minus x upon sin raised to the power 5 pi half minus x plus cos raised to the power 5 pi half minus x. इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. ये आएगा 0 to pi half. This will become sin raised to the power 5 upon cos raised to the power 5x plus sin raised to the power 5x dx. Now add these two. इन दोनों को ऐड कर, देखो लिमिट सेम है एंड डिनोमिनेटर भी सेम है. और इधर से LHS को ऐड करोगे और उधर से RHS को. LHS इज 2i एंड RHS आप लिखो 0 to pi half cos raised to the power 5x upon sin raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x dx plus 0 to pi half. इसे लिखोगे sin raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x plus sin raised to the power 5x dx. देखो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम ऐड कर सकते हैं. 0 to pi half, थोड़ा सा मैं एक स्टेप जल्दी कर रही हूँ, आप कर लेना. sin raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x और यहाँ भी cos raised to the power 5x plus sin raised to the power 5x dx. बस पूरा पूरा कैंसिल हो गया और ये सॉल्व हो गया. आप कर लोगे. 1 आ गया. 1 का इंटीग्रेशन तो आपको आता है pi half. दिस इज pi half. देन व्हाट इज i? I is equal to pi by 4 क्योंकि ये 2i is equal to pi half है. I is equal to pi by 4. This is about which one? Fourth. Yes, this fifth question. See, very interesting question और थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट भी है. ऑलराइट, ये मॉड वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में देखा जाता है. लुक हियर, मॉड वाले के लिए क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर ये क्वांटिटी होती है इसको 0 लिखते हैं. ये डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं इसे. ये आ गया x इज इक्वल टू -2. अब देखो मॉड का अल्टीमेट एम इज टू मेक एनी हाउ पॉजिटिव, लाइक -x का मॉड इज व्हाट, -x. जब मॉड के अंदर -1 है सपोज, इस -1 को हमने पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, एक साइन नेगेटिव का ये जो माइनस है हम इसे अपनी तरफ से इंसर्ट कर देते हैं, तब वो पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर ये पॉजिटिव था तो ये तो खुद ही पॉजिटिव था, हमें कुछ भी नहीं करना. ऑलराइट, अगर मॉड के अंदर जो नेगेटिव है तो एक माइनस साइन और बाहर से इंसर्ट कर देना ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मॉड का अल्टीमेट एम क्या होता है, एनी हाउ टू मेक द गिवन क्वांटिटी पॉजिटिव. राइट, -x का मॉड कितना होता है, -x. लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल -1. अब यहाँ पर भी देखो लिमिट यहाँ पर ब्रेक हो जाती है हमारी. कहाँ पर, -2 से -5 से है ये, -5 से -2. अब मॉड के अंदर देखो क्या आएगा, अगर आप x की वैल्यू -5 से -2 तक कुछ भी रिप्लेस करें, सपोज आई राइट हियर x इज इक्वल टू -4 कर देती हूँ, तो मॉड के अंदर कितना आ गया, -2. इस इंटरवल में से इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो. आई सेड सपोज आई रिप्लेस -4 क्योंकि -5 से बड़ा है, -2 से छोटा है, यहाँ रिप्लेस कर दी तो मॉड के अंदर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आ गया तो आपने क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है. आप क्या करोगे, एक माइनस साइन इंसर्ट कर दोगे. और वैसे भी जहां पर ये डिफ्लेक्शन है, ये अगर x + 2 x इज इक्वल टू -2 लिखते तो y इज इक्वल टू कितना होता, 0 होता. मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है. ऑलराइट, ये ग्राफ बनता है. सो इस ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पॉइंट है इससे नीचे तो नेगेटिव होता है और इस पॉइंट से ऊपर को पॉजिटिव होता है. ये भी एक कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं. और आसान सा कॉन्सेप्ट तो आप यही बोल सकते हैं कि क्या, मैंने क्या बोला, इसके बीच की कोई वैल्यू नेगेटिव, कोई वैल्यू रिप्लेस करो. अगर वैल्यू
मॉड के अंदर माइनस आता है, लाइक इफ आई राइट x इज इक्वल टू -3, तो मॉड के अंदर -1, मॉड के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो एक माइनस साइन इंसर्ट करो और मॉड भगा दो, प्लस। अब -2 से 5, देखो -2 से 5 में क्या होगा, -2 से 5 में इसमें -2 से बड़ा, सपोज x की वैल्यू आई राइट 0, x इज इक्वल टू 0 लिख देती हूँ, तो मॉड के अंदर कितना आ गया 2, अपने आप से क्या आ गया पॉजिटिव। जब ये अपने आप से पॉजिटिव आ गया तो आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके मॉड को भगा देना है। ऑलराइट, अब बस आपके पास सॉल्व हो गया ये, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया, -5 से -2, इसे हम ये लिख सकते हैं, माइनस है ये इंटीग्रेशन -5 से -2, ये x + 2dx इंटीग्रेट आप खुद करोगे, और प्लस -2 से 5 x + 2dx माइनस, इसको ऐसे ही रहने देना, सॉल्व कर लो फिर लिख लोगे x² / 2 + 2x, और लिमिट है -5 से -2, प्लस ये भी x² / 2 + 2x, और लिमिट है -2 से 5। यू विल सॉल्व दिस, मैं अब सॉल्व आगे नहीं कर रही हूँ।